हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी मित्रा। और आज हम लोग अपनी लीगल स्टडीज की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज ह्यूमन राइट्स। और आज मैं आपको इसका ह्यूमन राइट्स का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूंगा। एज यू नो दैट लीगल स्टडी जो आपका पेपर है वो थोड़ा वास्ट है, राइट? सो इवन इफ देयर इज ओनली वन चैप्टर ऑन ह्यूमन राइट्स इन द सीबीएसई बुक रेफर्ड फॉर लीगल स्टडीज, लेकिन वो उस एक चैप्टर में इतना कंटेंट है और इतने सवाल आ सकते हैं कि अगर मैं एक ही क्लास में सारा कंप्लीट करा दूं तो आप ही का नुकसान है। तो मैं चाहता नहीं कि हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो। So let's move forward and try to understand what is this issue of human rights, and we will cover certain topics today. The rest of the topics we will cover in the next class. So what we have to study in total. So for example, suppose you need to know na what is there in the syllabus. So what you have to study is very much precisely mentioned by the NTA CUT syllabus. First is that you have to understand the historical or let's say international context of the human rights. So there is a historical context in which human rights have developed, है ना, उसको develop हुआ है. And then there is an international context, which is that वो nation level पर develop भले ही हुआ, but उसको जो मान्यता मिली है, the larger consensus which has developed around human rights is an international origin. तो ये जानना है. Second, the constitutional framework and the related laws in India. Fundamentally, in what manner human rights are enshrined in the Indian Constitution. So for example, suppose we see article number 14, equality before the law or equal protection of laws. Or for that matter, suppose we look at the typical category known as right against exploitation, or let's say right to equality as a category itself. So in what manner the constitutional framework, or even for that matter, suppose we look at the directive principles of state policy. So how DPSP, fundamental rights, fundamental duties, or some other visions present in the constitution, for example, preamble, in what manner this framework is connected with the human rights discourse. Then related laws, like what are the different laws which Indian Parliament has passed based on the constitutional clauses that is connected with human rights. तो एक ये भी हमें समझने की कोशिश करनी है. Third is the complaint mechanism of the quasi-judicial bodies. So fundamentally, there are certain bodies known as quasi-judicial bodies. In some of the previous classes, I have discussed about the idea of the quasi-judicial, that it is also headed by people who do not belong to judiciary, who are not equally in a sense like a judge, but they perform the juridical or judicial functions. So that is known as the quasi-judicial body. So complaint mechanisms of the quasi-judicial bodies, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है. So today we will try to cover the international context, the historical context, the meaning of human rights. Then we will also try to discuss the question of constitutional framework, not entirely but some part of it, and then some part of the related laws in India. जैसे कुछ कुछ चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज वेरी वास्ट, है ना. आपकी किताब में ना बहुत वास्ट दिया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ तक थोड़ा इसका पार्ट हो पाए, फिर जो रह जाएगा यहाँ से कंटिन्यू करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे एंड वी विल डिस्कस दैट. सो लेट्स स्टार्ट. The first thing I want all of you to understand is the meaning of the human rights. Like, what do you mean by human rights? Number one, they are inalienable entitlements. You know, when you say that you are entitled to something, इसका मीनिंग क्या होता है कि आपका ना हक है, मतलब इट इज ड्यू टू यू. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, यू अंडरस्टैंड दिस टर्म ड्यू, लाइक इट इज ड्यू टू अस और ड्यू टू एन इंडिविजुअल. ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. दोज हु हैव अ बैकग्राउंड इन पॉलिटिकल साइंस, अगर उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा पढ़ा है, राइट्स को पढ़ा है अपने 11th-12th क्लास में, तो वो शायद इसको समझ पा रहे हो. जिनका नहीं है बैकग्राउंड, चिंता मत करो, आई एम हियर फॉर यू, सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट. सो व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ ड्यू? सो फॉर एग्जांपल, सपोज कि हम किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं. जैसे हम मान लीजिए हम अपने आप को इंडियन कहते हैं ना, वी आर इंडियंस, तो हम इंडिया का पार्ट हैं. सो वी आर सिटीजंस ऑफ इंडिया, वी आर सिटीजन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, वी आर इंडियंस, वी हैव वोटर आईडी कार्ड, वी हैव सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट्स टू शो दैट वी आर इंडियंस, राइट. नाउ जब आप इंडियन हैं और अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई आ जाता है और आपके घर में मान लीजिए आपके किसी भाई को या आपके पेरेंट्स को कोई आके सता रहा है, मान लीजिए कोई स्टेट का ही पर्सन है, कोई पुलिस पर्सन है, वो जबरदस्ती उठा के ले जाता है. सो व्हाट यू विल डू? You will go to the police station, you will file a complaint, और final resort में you will go to the court. Now when you go to the court, suppose आपको पता लगता है, आप कोर्ट जाते हैं, आप बोलते हैं कि हमारी FIR तक नहीं लिखी गई, बिना किसी वारंट के, बिना किसी ऐसे लीगल बेसिस के, उन्होंने हमारे जो है कंसर्न पर्सन को उन्होंने उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया. दे आर नॉट टेलिंग अस वेयर द पर्सन इज, और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं. तो जब आप ऐसी बात कहते हैं तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये बताते हैं ना कि दिस इज रॉन्ग. एज अ इंडियन सिटीजन, that person also has fundamental rights. It is due to him.
वो उनके ऊपर बकाया है, दावा की तरह है. सो व्हेन यू से एंटाइटल्ड, सो यू आर एंटाइटल्ड टू समथिंग, इट इज ड्यू टू यू, आपके ऊपर बकाया, आपको मिलेगा, वो आपको प्राप्त होना चाहिए. सो व्हेन वी आर सेइंग दैट ह्यूमन राइट्स आर एक्चुअली इनएलिएनेबल एंटाइटलमेंट्स. इनएलिएनेबल का मतलब क्या होता है? इससे आपसे कोई छीन नहीं सकता, अविभाज्य है, मतलब आपसे कोई डिनाई नहीं कर सकता आपकी ह्यूमन राइट्स. सो फंडामेंटली ह्यूमन राइट्स आर दोज इनएलिएनेबल एंटाइटलमेंट्स which are available to a human because that person is a human. चूंकि मैं एक इंसान हूं, मेरे पास कुछ ऐसे हक हैं, कुछ ऐसे दावेदारियां हैं जिन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज मैं एक इंसान हूं. और इसका जो इसका आइडिया है वो क्या है? इट एंश्योर्स डिग्निटी एंड फ्रीडम. डिग्निटी क्या हुआ? देयर इज अ सेंस ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, राइट, towards oneself, and you need recognition from others. जैसे कि मान लीजिए I have this smart pen here, right? So अगर मान लो ये खराब हो जाए तो मैं क्या करूंगा? दूसरा ले आऊंगा. अगर मान लीजिए वो भी खराब हो जाए तो मैं क्या करूंगा? तीसरा ले आऊंगा. इसकी कोई डिग्निटी नहीं है इस पेन की. और थिंक अबाउट दिस ग्लास ऑफ वाटर. सो आई हैव दिस ग्लास ऑफ वाटर. अगर मान लीजिए पानी खत्म हो जाता है तो मैं पानी में क्या करूंगा? दूसरा ग्लास भर दूंगा, तो मेरा पानी फिर से भर जाएगा. मान लीजिए खत्म हो गया तो. मान लीजिए ग्लास टूट जाता है तो मैं क्या करूंगा? इसे रिप्लेस कर दूंगा. सो होता क्या है? व्हेन यू थिंक अबाउट सर्टेन गुड्स, ठीक है, मान लो अगर मैं यहां पे लिख देता हूं सम काइंड ऑफ गुड्स, और लेट्स से व्हेन वी थिंक अबाउट सर्टेन, लेट्स से थिंग्स, ठीक है, कोई चीज है, ये क्या है? दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, है ना. हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड. इसकी जगह कोई दूसरा आ सकता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग ना, यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अ ह्यूमन बीइंग फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग. यही गलती हिटलर ने की थी. हिटलर ने क्या सोचा कि जो ज्यूज है ना, ज्यूज वर्कर्स, और फॉर दैट मैटर द ज्यूज मेन, ज्यू विमेन, ज्यू चिल्ड्रन, राइट, आप इन्हें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. They are second class beings. They are not even equal humans in comparison to the so-called Nazi German Aryan race. But how is he criticized? This is wrong. ऐसा नहीं है. Why? Because you cannot substitute a human being. अब वो क्या चीज है जो एक ग्लास को एक ह्यूमन से अलग करती है, जो इस पेन को एक ह्यूमन से अलग करती है? एंड इन वर्ड्स ऑफ इमैनुअल कांट, है ना, बहुत कमाल के एक फिलोसोफर रहे इमैनुअल कांट. आई एम वेरी लकी कि जेएनयू में प्रोफेसर गुरप्रीत महाजन ने मुझे कांट पढ़ाया था. ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स पूरा उनका किताब है. तो इमैनुअल कांट ने अपनी किताब में लिखा है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ थिंग फ्रॉम अ ह्यूमन एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन इज दैट ह्यूमंस हैव डिग्निटी. ठीक है, उनके अंदर क्या है? डिग्निटी है. दे हैव अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ वैल्यू. They have that kind of value which cannot be substituted. That is why slavery is against dignity. That is why torture is against dignity. That is why considering someone as a second class human is against dignity of that human being. Dignity is a prime value present in a human being. So ये क्या है? Human rights, they ensure dignity and they ensure freedom in a total sense. What are the core principles of human rights? Very simple. Equality. We are not talking about this kind of equality. This is absolute equality. Equality is always proportional. वो हमेशा ना अनुपात में होता है. जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा ये पेन, और भी साइड में अगर हम स्मार्ट पेन रख दें, so the varieties of smart pens have equality, right? So equality is proportional. It is not absolute. Absolute equality is like a dream, and absolute equality sometimes is controversial as well. So उस पे कभी और बात करेंगे if we get some other chance. So equality, fairness, सम काइंड ऑफ फेयर ट्रीटमेंट यहां बात हो रही है कि ठीक ठाक व्यवहार, सबके साथ एक तरीके का फेयर बिहेवियर हो, निष्पक्ष व्यवहार हो, दैट इज इक्वालिटी. देन फ्रीडम, मतलब क्या हुआ? यू मस्ट हैव दिस चॉइस. यहां पे चॉइस की बात है. आई मस्ट हैव दिस चॉइस. चॉइस क्या? कि मैं इससे पढ़ाना चाहता हूं, किसी और पेन से पढ़ाना चाहता हूं, यहां पढ़ाना चाहता हूं, कहीं और पढ़ाना चाहता हूं, यहीं रहकर पढ़ाना चाहता हूं, मूवमेंट करके पढ़ाना चाहता हूं, यहां काम करना चाहता हूं, कहीं और काम करना चाहता हूं, इस धर्म को मानना चाहता हूं, किसी और धर्म को मानना चाहता हूं. दैट इज द चॉइस एलिमेंट. वी मस्ट बी एबल टू मेक सर्टेन चॉइसेस. चॉइसेस का कंडीशन होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर मस्ट बी सम परसुएसिव सर्कमस्टांसेस दैट कैन हेल्प अस इन एक्चुअली मेकिंग अ चॉइस और एक्चुएटिंग अ चॉइस, कि हम उसको पोटेंशियलिटी से रियलिटी बना पाए. तो एक ये बात है कि कैसे हम एक्चुअलाइज कर पाए चॉइस को, ये एक आर्गुमेंट है. जस्टिस,
सिंपल अगर आप देखें तो जस्टिस का मतलब क्या है? इट इज नोन एज अ प्राइम वर्च्यू ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। जस्टिस मींस कि कम से कम जो एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो ट्रीटमेंट है, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रीडम। ये नहीं कि आप पक्षपाती है ना, आर्बिट्ररी बिहेवियर पे नहीं होना चाहिए। रेशनल बिहेवियर हो सकता है बट उसके अंदर इक्वालिटी का एक आर्ग्यूमेंट आना चाहिए। जो चीज जस्ट है, जो चीज न्यायोचित है, वो होनी चाहिए। एंड देन द आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट। सी, We must have seen many people, किसी का कद छोटा है तो उसका मजाक बना दिया, कोई सांवला है तो उसका मजाक बना दिया, किसी के बाल कम है तो मजाक बन गया, किसी के दांत बाहर है तो मजाक बना दिया, राइट? आप मान लीजिए आज भारत में तो और कमाल का होता है, यहाँ तो कास्ट भी है। कोई स्पेसिफिक कास्ट से है तो उसका मजाक बना दिया, कोई स्पेसिफिक क्लास से है तो उसका मजाक बना दिया। नो, द ट्रीटमेंट ऑफ अ फेलो ह्यूमन बीइंग मस्ट बी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट। व्हाई? बिकॉज इवन दो वी माइट डिफर इन आवर डिग्रीज, मेरी अलग डिग्री होगी, आपकी अलग डिग्री होगी, हो सकता है आप लोग 12th पास हो, राइट? मैं यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई करके बैठा हूँ, हो सकता है कि आपकी अंग्रेजी मुझसे ज़्यादा अच्छी हो या मेरी ज़्यादा अच्छी हो सकता है कि आप कम अच्छा बोलना चाहते हो, मैं ज़्यादा अच्छा बोलना जानता हूँ। देर आर मेनी थिंग्स विच आर डिफरिंग बिटवीन अस। वो नहीं होना चाहिए मैटर। वाई? बिकॉज एन इंडिविजुअल मस्ट बी नोन बाय हिज और हर इंट्रिंसिक वर्थ, और वहां से आता है रिस्पेक्ट का फीलिंग कि हम उसके अंदर की भावना को, उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर, उसका नेचर, और सबसे बड़ी बात, सिंस यू आर अ ह्यूमन यू डिजर्व टू बी ट्रीटेड इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। तो ये कोर प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल रूट ऑफ ह्यूमन राइट्स? सी, अगर आप देखेंगे दो तरीके से आंसर आते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल इफ आई से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो हम कहेंगे ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन उससे पहले से ही, जैसे मान लीजिए देयर इज अ वेरी गुड फिलोसोफर एंड अ पर्सन हु वर्क्स ऑन रिलीजन, हिज नेम इज रजा असलन, ठीक है? तो उन्होंने जीसस पे काम किया है। और फॉर दैट मैटर अगर मान लीजिए आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते हो, इवन द लेजेंड ऑफ रामायण एंड महाभारत है ना, आप किसी को भी उठा लीजिए, आप जब रिलीजियस ट्रेडिशंस में जाते हैं तो आपको दिखता है कि ह्यूमन राइट्स की बात हर जगह हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ यही कॉन्टेक्स्ट है, ये अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग कल्चरल ट्रेडिशंस में भी हमें नजर आता है। हालांकि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट मॉडर्न कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली रिजल्ट ऑफ द लिबरल फिलोसफी। खासतौर पे कौन लोग? देयर इज अ पर्सन नेम जॉन लॉक, देयर इज रूसो, देयर इज कांट, इन लोगों की वजह से ये निकल के आता है। और इसका पर्पस क्या है? द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ह्यूमन राइट इज कि कैसे इंडिविजुअल के फ्रीडम्स को इंश्योर किया जाए, कैसे एक सोशल हार्मनी को इंश्योर किया जाए। क्यों? क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में ये डेवलप हुआ, हमने देखा कि इंडिविजुअल के जो पूरा का पूरा फ्रीडम का था, पूरा उसका आइडिया था, फ्रेमवर्क था, कैसे उसको जियोपेडाइज किया गया। एंड इंडिया का अप्रोच क्या रहा है? इंडिया में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहां पे ह्यूमन राइट्स एंश्योर्ड हैं। इंडिया में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो ह्यूमन राइट्स को मजबूत करता है, और इंडियन पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम ऐसे कानून पास किए हैं जो ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, let's look at these specific scholars who have contributed. So first person is John Locke. John Locke is also known as father of liberalism. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये सवाल आ गया तो आपके पास एक अच्छा आंसर होना चाहिए। Now when we think about John Locke ने किया क्या? He was writing at a very controversial time period. दुनिया बदल रही थी, नए तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात हो रही थी, नया पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की बात हो रही थी, वर्ल्ड वाज चेंजिंग। एंड जॉन लॉक सेड that the state of nature has a law of nature to govern it, which obliges everyone, and reason, which is that law, teaches all mankind who will but consult that being all equal and independent, no one ought to harm another, his life, liberty, possessions. मैं बताता हूँ क्या इसका मीनिंग हुआ। अब इस तरीके से जमाने की अंग्रेजी भी अलग थी ना। So fundamentally what Locke is saying that there is a universal truth. What is that universal truth? That there is a state of nature. Now स्टेट ऑफ नेचर इज अ पॉलिटिकल आइडिया। ऐसा आप टाइम एक्सपेक्ट कीजिए, दिमाग में इमेजिन करो, जब स्टेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो लॉ को लागू करवा सके। सो देर इज लैक ऑफ दिस लार्जर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दैट इज नॉट अ स्टेट ऑफ नेचर, है ना। अब टॉमस हॉब्स ने इस पर अलग बात की है, ही इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। लॉक सेज कि इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज अ लॉ ऑफ नेचर, है ना, प्रकृति का एक कानून है। What is the law of nature? Reason is the law of nature. And what is reason telling us? ये विवेक हमें क्या कह रहा है करने के लिए कि हम सब क्या हैं?
इक्वल हैं, वी आर इक्वल इन कैपेसिटीज, वी आर इक्वल इन सेंस ऑफ इंट्रिंसिक वर्थ। और जो हमारे अंदर ये इक्वालिटी है, ये हमें समझाती है कि किसी को भी किसी के लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोजेशन, इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। तो ये सबके लिए बात करने लग गए ना, किसी को भी किसी के साथ। सो ही इज टॉकिंग अबाउट अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क। एंड व्हाट इज दिस यूनिवर्सल फ्रेमवर्क? ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल ह्यूमंस। हालांकि सच बात यह है कि लॉक का जो ऑल ह्यूमंस का फ्रेमवर्क है, वो शायद उस जमाने के इंडियंस पे लागू नहीं होगा, उस जमाने में जहां स्लेवरी थी वहां शायद लागू नहीं होगा, तो वो डिबेट की बात है, बट फंडामेंटली लॉक। देन वी हैव जीन जाक्वा रूसो। व्हाट इज रूसो सेइंग? What man loses by the social contract is his natural liberty and the unlimited right to everything he tries to get and succeeds in getting. कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या लूज करता है कि जो उसके पास एक अनलिमिटेड अथॉरिटी आ रखा है कि जो वो चाहे वो कर ले। मतलब क्या है? लॉज एंड रेगुलेशन हमें टेम करते हैं ताकि हम दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट कर सकें। देन वी हैव थॉमस पेन, अ वेरी लेजेंडरी पर्सनालिटी। ही हैज रिटन अ वंडरफुल बुक कॉल्ड राइट्स ऑफ मैन। आपको जाहिर सी बात है, व्हेन यू विल एंटर द suppose some of you who want to pursue law, you will definitely read this book, or suppose you want to pursue MA in political science or BA in honors in political science, तो थॉमस पेन आपको पढ़ना होता है। What Thomas Paine is saying, man did not enter into society to become worse than he was before. हम इसीलिए समाज का भाग नहीं बनते कि जो पहले हैं उससे ही बदतर हो जाए, नहीं। Nor to have fewer rights than he had before. ना हम इसलिए सोसाइटी का भाग बनते कि अब हमारे पास कम राइट्स होंगे जैसे कि पहले से उससे भी कम होंगे, नहीं। बट टू हैव दोज राइट्स बेटर सिक्योर्ड, बल्कि हम इसीलिए सोसाइटी का भाग बनते हैं कि जो हमारे पास राइट्स पहले से हैं, ये वाले और ये वाले, ये ज्यादा बेहतर हो सकें। ये नहीं कि इसे हमें डिनाई कर दिया जाए, इनको कम कर दिया जाए। हिज नेचुरल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल हिज सिविल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या है? लॉक से निकल के आ रहा है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पोजेशन या प्रॉपर्टी, यहीं से बाकी राइट्स निकलते हैं। सो These are the fundamental scholars जिनका नाम जो है ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स से जुड़ा हुआ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ व्हाट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स? सबसे पहला, व्हेन यू थिंक अबाउट द एंशिएंट रिलीजियस ट्रेडिशंस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन इन अ वेरी कंस्ट्रेन्ड और स्ट्रेट जैकेट मैनर। मैं यहाँ पे रिलीजन की बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ जैसे कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। रिलीजन को आप एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वेदर इट इज हिंदुइज्म, ठीक है, वेदर इट इज बुद्धिज्म, it emphasizes respect for all. So for example in Buddhism we have the idea of samadhisthi, right? या हिंदुइज्म में कहा जाता है ना कि देखो ईश्वर के सब जन एक बराबर, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट चलता है। तो हमें दिखता है कि एंशिएंट फाउंडेशंस हैं दिस आइडिया कि सभी इंसानों के बीच में एक ही तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक ही तरह का, मैं आइडेंटिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब उनको भी एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब इस तरह की बातचीत हम करते हैं ना, तो इसका फाउंडेशन एंशिएंट है। दैट फाउंडेशन इज कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑल ओवर। बट when you think about in a political sense, क्योंकि आप मेटाफिजिक्स या फिलॉसफी में बहुत नहीं रह सकते हैं ना, आपको क्या करना होगा, आपको पॉलिटिकल रियलिटी में उतरना पड़ेगा। एंड व्हेन यू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लीगल पर्सपेक्टिव में जब आप आएंगे तो आपको एक कानूनी दस्तावेज चाहिए। एंड दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट व्हेन वी से कि जब आप मैग्ना कार्टा की बात करेंगे 1215, सो इन मैग्ना कार्टा फॉर द फर्स्ट टाइम दिस थॉट केम फॉरवर्ड कि ये एक पहला लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने बैरन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया था। दिस इज मैग्ना कार्टा हियर, वन ऑफ द कॉपीज। समझिए ऐसा है। देखिए मैग्ना कार्टा का आइडिया क्या था। सो फंडामेंटली देयर वाज दिस किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, दिस पर्सन हियर, है ना, जॉन किंग। तो इनका थोड़ा राजा थे तो सबसे बड़े लॉर्ड थे, तो इनका ना राज करने का तरीका भी थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंट था। एंड ही वाज नॉट रिस्पेक्टिंग दी ट्रेडिशनल कस्टमरी अथॉरिटी ऑफ अदर पीपल, अदर बैरन्स, सामंत या फ्यूडल भी आप कह सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड, अ प्रोटेस्ट स्टार्टेड हैपनिंग एंड दैट प्रोटेस्ट ग्रू टू अ वेरी लार्ज स्ट्रेंथनिंग एटमॉस्फेयर उसमें हुआ। सो इन अदर वर्ड्स कि जैसे ये महल में है तो बाहरी प्रोटेस्ट हो रहा है, किंग जो बात कह रहे हैं उसको नहीं माना जा रहा है। सो देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ डिनायल, and in addition to denial there was also this element of strong resentment against the so called dictums or let's say decisions of the king. जब ये होता है तब दिखता है कि किंग साहब तो परेशान है ना, तो किंग साहब को बोलेगा कि नहीं अब आके आपको बात करनी होगी। किंग तो ठहरे किंग, नहीं माने।
तो जब ज़्यादा होने लगा ना प्रोटेस्ट, व्हेन इट स्टार्टेड गेटिंग मोर अटेंशन, व्हेन इट बिकेम फर्दर स्ट्रेंथेंड, तब क्या होता है, किंग को घुटने टेकने पड़ते हैं। और वो क्या होता है, इनके बीच में ना एक संधि होती है बिटवीन द बैरन्स एंड द किंग्स, एंड दैट स्पेसिफिक ट्रीटी इज नोन एज द मैग्ना कार्टा। Sometimes in certain parts of the academic discourse, मैग्ना कार्टा को दुनिया का पहला संविधान भी कहा जाता है, the first constitution of the world, though it is debated. I personally have a debate over that, तो उसमें नहीं जाना है, बट मैग्ना कार्टा में हमें दिखता है कि कैसे एक रूल ऑफ लॉ का इनिशियल अंडरस्टैंडिंग आता है, लॉ इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द लॉ, ये आइडिया निकल के आता है, और उससे हमें ह्यूमन राइट्स का फ्रेमवर्क नजर आता है। इसके अलावा वी हैव द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ी और बात करेंगे, बिकॉज इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स से भी सवाल आपका आता है। सो मैग्ना कार्टा 1215 याद रखिएगा, देन इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689। इसने क्या किया, मोनार्क के पावर को थोड़ा लिमिट कर दिया कि नहीं, मोनार्क हैं आप, राजा हैं, फाइन, बट वी हैव अ ट्रेडिशन, मैग्ना कार्टा से आ रहा है, ये भी इंग्लैंड में हो रहा है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स भी इंग्लैंड में ही आ रहा है, कि मोनार्क की ताकतें इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो आर्बिट्ररी हो, उसे थोड़ा कम करने की जरूरत यहाँ पे है। और फिर हमें दिखता है कि थोड़ी लिबर्टीज इंसानों की बढ़ी। देन द मेजर थिंकर्स, इनके बारे में भी डिस्कस किया हमने। देन देयर वाज अ लैंडमार्क मूवमेंट इन 1789, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, ठीक है, ये पूरा आइडिया आता है। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फिर से मैन, ध्यान रखना मैन, हाँ यहाँ वुमेन की बात नहीं हो रही है, ठीक है, हालांकि फ्रांस में एक ओलंपस डी गॉजेस नाम की एक महिला थी, उन्होंने द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजंस किया था, बाद में उनको बहुत बुरा पेन से गुजरना पड़ा, उस पर कभी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो राइट्स ऑफ मैन में जो ये डिक्लेरेशन हुआ, बोला गया कि लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सबके हैं, ठीक है। देखिए क्या टर्म यूज हुआ है इन द फ्रेंच डिक्लेरेशन, इट इज सेड men are born and remain free and equal in rights, and that these rights include liberty, property, security and resistance to oppression. आदमी आजाद पैदा होता है, men are born and remain free, वो आजाद पैदा होता है और आजाद रहता है, प्लस उनके पास इक्वल इन राइट्स हैं, उनके राइट्स भी इक्वल हैं, और वो राइट्स क्या है, राइट टू लिबर्टी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सिक्योरिटी, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, राइट of resistance to oppression. तो एक बात हुई। Then we have another legendary document, American Declaration of Independence, और वहां क्या किया गया, that each and every individual has certain unalienable rights, जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। And then इसमें भी एक statement है, we hold these truths to be self-evident, ये अपने आप में सच हैं, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. The Pursuit of Happiness is a wonderful movie, आप लोग जरूर देखिएगा। So what you are getting at is कि बहुत लंबा इसका एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है। अब क्या होगा, आपसे ईयर पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछते हैं 1776 तो वो क्या है, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आपसे पूछते हैं 1789 तो वो क्या है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अगर आपसे पूछते हैं 1689, 1789 नहीं, 100 साल पहले 1689 तो वो क्या है, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। और अगर आपसे पूछते हैं 1215 तो वो क्या है, मैग्ना कार्टा। इसके अलावा एक और सवाल बनेगा कि किसने में क्या लिखा हुआ है। सो अगर मान लीजिए लिखा गया ये, men are born and remain free and equal in rights, अगर ये लाइन लिखा हुआ है, so you have to opt for the French Revolution document। और अगर मान लीजिए नीचे वाली लाइन लिखी हुई है तो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस आपको चुनना होगा। यहां से बहुत सारे सवाल जो है वो आते हैं, आए हैं और आगे आएंगे भी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा ना बिल ऑफ राइट्स, तो उसमें क्या किया गया, मोनार्क के पावर को थोड़ा कम किया गया था। तो कैसे कम किया गया था, सी व्हेन यू थिंक अबाउट दिस एंटायर राइट, है ना, पूरा जो डिक्लेरेशन है उसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। ये इसका एक बड़ा सुंदर सा इमेज मुझे मिला था, मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। नंबर 1 इज दैट इट इज अ एक्ट व्हिच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द सब्जेक्ट एंड सेटल्स द सक्सेशन ऑफ द क्राउन। मतलब सब्जेक्ट है, मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिटीजंस एज सच। सब्जेक्ट क्या हो गए, खासतौर पे कि किंग के सब्जेक्ट, सिटीजंस हैं बट दे आर सब्जेक्ट्स इन अ पॉलिटिकल सेंस, कि वो किंग के सब्जेक्ट हैं। बिल ऑफ राइट्स में क्या था कि राइट्स एंड लिबर्टीज सिटीजंस के, और की राइट्स कौन से होंगे, नंबर 1 we have certain parliamentary privileges, क्या होंगे, ensuring free elections and freedom of speech within the parliament। पार्लियामेंट में जाने के लिए फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा बकायदा ओपन स्पीच, फ्री स्पीच, कि आदमी जो चाहे वो बोल सकता है। आज के टाइम पे आप सुनते होंगे ना पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है फ्री स्पीच, तो कहां से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स ऑफ 1689।
सेकेंड, राइट नॉट टू बी टैक्स्ड विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के किसी को भी टैक्स देने का कोई भी मजबूर नहीं किया जाएगा। ये क्या है कि एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट या क्राउन ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकता जब तक पार्लियामेंट ने उस पर रजामंदी नहीं दी हो। थर्ड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट इंट्रूजन, आपकी अपनी लाइफ में अननेसेसरी गवर्नमेंट इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये भी कहां से आ रहा है? इंग्लिश बिल ऑफ राइट से आ रहा है। देन राइट टू पिटिशन कोर्ट्स, इसके बाद भी कोई ना माने तो कहीं तो जाओगे, तो आप कोर्ट जा सकते हैं पिटीशन के लिए। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट इन द जुडिशियल सिस्टम, कि जुडिशरी में जाके आपके साथ भेदभाव ना हो, ये भी इसी से निकल के आ रहा है। सो ये जो हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है जहां पे इतने सारे राइट्स निकल के आए, इसने भी ह्यूमन राइट्स को डेवलप होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, इंपॉर्टेंट रोल को निभाया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट थिंग इज, लुक एट दिस, दिस इज द अमेरिकन ओरिजिनल, है ना, this is the original American Declaration of Independence and this is the French Declaration of the Rights of the Man and Citizen. See its preamble here, then you have articles of the this entire charter 1 2 3 4 ये पूरे आर्टिकल्स हैं और इसमें पूरा लिखा हुआ फ्रेंच में कि क्या क्या राइट्स आपके पास हैं। सो ये थोड़े से इमेजेस थे, बिकॉज रिमेंबर CUET के पेपर में इमेजेस पे सवाल आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इमेज क्या चीज दिखा रहा है। सो मैग्ना कार्टा आपने देख लिया, अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देख लिया, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स का भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया, एंड दिस इज द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ कम्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। सो व्हेन वी थिंक अबाउट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये है क्या। सी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ हुआ था, है ना, बहुत बुरा हुआ था। इफ यू ऑल रिमेंबर दैट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज अ लीडर, द नेम ऑफ द लीडर वाज एडोल्फ हिटलर, है ना। तो एडोल्फ हिटलर ने किया क्या था? एडोल्फ हिटलर ने बोला कि जो ज्यू लोग होते हैं, यहूदी, ये हमारे बराबर के तो है नहीं, आर्यन, जर्मन, नाजी लोग सबसे प्योर रेस हैं, और अगर यहूदियों को मारा जा रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मतलब इनका ये था कि अगर मान लीजिए किसी यहूदी को टॉर्चर किया जा रहा है, उसके साथ एनिमल जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर किसी यहूदी बच्चे को गैस चेंबर में मार दिया जा रहा है, मारने से पहले उनके जितने ऑर्नामेंट्स हैं, उनकी बॉडी में मान लीजिए कोई सोना है, सब निकाल लिया जा रहा है, अगर उनके स्किन के ऊपर पेंटिंग हो रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सो फंडामेंटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आप सिर्फ वॉर की तरह याद मत कीजिए, दुनिया में वो शायद एक इतना बड़ा इंसिडेंट भी है कि एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को एक स्लेव या एक एनिमल की तरह ट्रीट किया गया, इजंट इट? सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज अ आई ओपनिंग काइंड ऑफ इवेंट। इसमें ये जब आया नहीं लगा ना कि अरे इतना बुरा कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, तो सबकी नजरें जो है वो शर्म से झुक भी गई थी, एंगर भी था, शॉक बहुत ज्यादा था कि कोई एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है। मॉडर्न टाइम पीरियड में, मेडिवल और एंशिएंट में तो लोगों की इतनी समझ ही नहीं थी, तो लोग करते ही थे, लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड में कोई कैसे कर सकता है? तो उसमें क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, हो गया है, खत्म हो चुका है, तो कई सारे इंस्टीट्यूशंस बने, जैसे यूनाइटेड नेशंस बना, और उसी दौरान देयर वाज दिस वुमन, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वुमेन का नाम खोजें, ठीक है, ये नाम खोजना ताकि आपको पता रहे कि ये कौन है। एक हिंट दे देता हूँ कि अमेरिकन कनेक्शन है इनका बहुत बड़ा। ये जो महिला है, इन्होंने ही ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाहर निकाला था, और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें ह्यूमन राइट्स की बात करनी है। सो 1948 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एक आर्ग्यूमेंट दिया दैट वी हैव टू अडॉप्ट, एंड दे अडॉप्टेड समथिंग व्हिच वाज अ कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल्स एंड नेशंस। सारे के सारे लोग और सारे के सारे राष्ट्रों के लिए एक एम दिया गया कि आपको ये एम अचीव करना है, एंड दिस एम वाज ऑफ ह्यूमन राइट्स। पर्पस क्या था? टू सेट दिस कॉमन स्टैंडर्ड। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जितने मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने ये कमिटमेंट किया, दे एग्रीड टू दिस कि हम ह्यूमन राइट्स को बचाएंगे। देन एक एनफोर्समेंट की बात हुई कि ये जितने मेंबर स्टेट्स हैं ये अपने देश में ऐसे कानून बनाएंगे कि ह्यूमन राइट्स को लागू किया जा सके, उन्हें इंप्लीमेंट किया जा सके, और उन्हें बचाया जा सके, उन्हें फर्दर आगे बढ़ाया जा सके। एंड फाइनली
दे डेवलप्ड इनटू द ग्लोबल फ्रेमवर्क। इसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज और भी आई, जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल सोशल इकोनॉमिक राइट्स, ऐसे करके अलग अलग राइट्स के डिस्कोर्स में नए नए कोवेनेंट्स आए। तो हमें ये नजर आता है कि इस तरीके का एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था जहाँ पे ह्यूमन राइट्स डेवलप हुए। लेट्स ड्वेल इनटू इट अ बिट फर्दर, ताकि आपकी समझदारी और अच्छी हो सके। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेजर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, कौन कौन से ऐसे राइट्स होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स मानते हैं, तो आपका क्वेश्चन तो बनेगा ये। तो लेट्स लुक एट इट। सबसे पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। असेंबली, एक साथ कहीं इकट्ठा होने का अधिकार। कॉन्शियंस, मैं क्या सोचता हूँ, क्या सही मानता हूँ, मैं कौन सा धर्म मानना चाहता हूँ, कौन सा नहीं मानना चाहता हूँ, ऐसा अधिकार। रिलीजन, है ना, ये आपको पहला मिलता है। सेकंड क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने का। सी एजुकेशन इज द बेसिस जिससे कोई इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करता है, तो ये भी एक राइट हो गया। राइट टू लाइवलीहुड एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब आपको एक अच्छा खासा आपके पास काम करने का पूरा ऑप्शन हो और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो सके, आप एनिमल की तरह न जी रहे हो, यू शुड नॉट बी हैविंग अ मिजरेबल लाइफ। देन वी हैव द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन क्या हुआ कि आप कहीं भी हो, चाहे घर पे हो चाहे बाहर हो, आप सिक्योर होने चाहिए, महफूज होने चाहिए। देन वी हैव राइट टू इक्वालिटी, एज आई सेड, fair treatment, some kind of neutral treatment. Then freedom from discrimination including those based on gender and race, कि किसी के लिंग बोध के आधार पे, जेंडर के आधार पे, या किसी के नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर आल्सो ग्रुप्ड, ठीक है, इन्हें कई तरह के सेक्शंस में ग्रुप किया जाता है। जैसे मान लीजिए सिविल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, ऑलराइट, इसी तरह सोशल राइट्स, ऑलराइट, देन सर्टेन राइट्स आर इकोनॉमिक राइट्स, देन कल्चरल राइट्स, और लेट्स से द आइडिया ऑफ कल्चरल मेंबरशिप। तो कई तरह से इनको ग्रुप भी किया जाता है। एक और टर्म चलता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इसके बारे में मैं आपको फिर अभी बताऊंगा, अभी इतना जान लीजिए कि मेजर एग्जाम्पल्स क्या हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये देखिए यूडीएचआर है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका एक पूरा का पूरा थोड़ा ढांचा है। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप लोग देख लें कि अगर कहीं सवाल आ गया तो आपके पास एक अच्छा आंसर इसमें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सबसे पहला क्या है, क्या स्ट्राइव किया जा रहा है? बाय टीचिंग एंड एजुकेशन टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर दीज राइट्स एंड फ्रीडम्स एंड बाय प्रोग्रेसिव मेजर्स national and international to secure their universal and effective recognition and observance। फंडामेंटली पढ़ा के, शिक्षा के माध्यम से मेजर्स लेके, चाहे वो इंटरनेशनल लिए जाए या नेशनल लिए जाए, कैसे इन राइट्स को बचाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। देन देयर इज अ ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। स्टेट्स मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद और कर्टेलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब अगर किसी देश में ह्यूमन राइट्स की बात होती है, कोई भी ऐसा देश है जहां पे ह्यूमन राइट्स रेजिम है, कमिटेड है, तो स्टेट्स को रोकना नहीं चाहिए उसे, बल्कि बेहतर बनाना चाहिए। देन वी हैव द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 के सिविल और पॉलिटिकल फ्रीडम एंजॉय करने का राइट हर किसी के पास है। तो आपके पास एक सवाल बनेगा, इन विच ईयर यूडीएचआर वाज अडॉप्टेड? 1948। इन विच ईयर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाज अडॉप्टेड? 1976। बट इसके अलावा और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस, द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, दिस इज ऑल्सो 1976। ठीक है, जैसे क्या है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लाइवलीहुड है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हेल्थ है, शेल्टर है, एंड सो ऑन। मतलब डीपीएसपी है ना हमारा, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सिमिलर टू दैट। देन वी हैव द कोवेनेंट ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1990 में आया था कि बच्चे जो हैं उनकी फिजिकल मेंटल इमेच्योरिटी नीड्स हो गई, स्पेशल नीड्स हो गया, केयर की बात होगी, प्रोटेक्शन की बात होगी, ये होना चाहिए। देन वी हैव द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, दिस इज 1979। एज यू नो, द सेकेंड जेंडर बोल देते हैं लोग, वो भी गलत है। कुछ लोग कह देते हैं कि द सब क्लास जेंडर, वो भी गलत है। इक्वल जेंडर है ना, बराबरी का हक है, उनके अधिकारों की बात हो रही है। देन कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज 1954, उनके राइट्स बचे। इसके अलावा और भी हैं। फॉर एग्जाम्पल द कन्वेंशन रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज,
ठीक है, राइट्स ऑफ द पर्सन हु हैव स्पेसिफिक नीड्स, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई ट्राइबल है, उनकी राइट्स के नीड्स अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहीं तक लिस्ट सीमित है या लिस्ट लिमिटेड है, और भी इसमें चीजें जुड़ती हैं, बट आपके लिए मैं चाह रहा था कि आप इसको जरूर देखें। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, है ना, जो आपका सेकंड पार्ट है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट यही है, इसमें सवाल आने हैं, तो आपको वो कोवेनेंट्स के नाम, ईयर ये याद होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है, यही है फंडामेंटल फ्रेमवर्क। एक है प्रियम्बल, जिसमें आपको दिखता है कि ह्यूमन राइट्स के विजन एंश्योर्ड है। दूसरा है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, इनएलिएनेबल राइट्स हैं ये भी। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, and part 4a which was added by an amendment but it was present in some sense already, which is fundamental duties. So when you think about the human rights framework, तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं या कई सारे साउथ अफ्रीका जैसे देश हैं या और कोई अफ्रीकन देश है, तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ना ह्यूमन राइट्स का आइडिया एंश्योर्ड है। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स का आइडिया एंश्योर्ड है, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। सो वी डोंट नीड अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑन ह्यूमन राइट्स, इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ह्यूमन राइट्स। अगर मान लीजिए सीयूईटी में एक सवाल आ जाए आपके पास कि व्हाट आर द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, आंसर क्या होगा? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4a। देन if you think about the preamble, let's start from the preamble itself, then we will enter the fundamental rights part। थोड़े fundamental rights मैं आपको आज करा के भेजूंगा। preamble का टेक्स्ट पहले पढ़ लीजिए, बहुत सारे सवाल यहां से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट, we the people of India, we are the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। socialist और secular इसमें 42nd amendment से जोड़े गए थे, it's fine, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ भी गलत नहीं है। तो पहला क्या है, हम इंडिया को कुछ बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं? अ सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस। क्या सिक्योर करना है? नंबर 1 जस्टिस। जस्टिस कौन सा? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, ठीक है, या सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फंडामेंटली ये एक सीक्वेंस है। देन लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ व्हाट? थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप, है ना, थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, वर्शिप का। Then we have equality of status and opportunity, कि एक तरफ आपस में इज्जत से बात पेश आया जाए और अपॉर्चुनिटी सबको मिले। एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है कि उन सबके बीच में कुछ प्रोमोट करना है। क्या प्रोमोट करना है? द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। व्हाट इज द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी हेयर? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सी फर्स्ट स्लाइड, डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन को पीछे रखा गया है। मतलब से मान लीजिए अगर मैं इंडिया को थोड़ा सा, है ना, यहाँ हल्का सा बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है। अगर आप नेशन के ढांचे को देखेंगे, नेशन या इंडिया है ना, वो नक्शे पे बनी हुई कोई चीज नहीं है। इंडिया है उसके लोग। अगर उन लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व, भाईचारा, कॉमन ब्रदरहुड की भावना है, वो कैसे आएगी? व्हेन वी स्टार्ट ट्रीटिंग ईच अदर विद डिग्निटी, है ना। अभी कोई सड़क पे चल रहा है, एक ऑटो वाला पर्सन रिक्शे वाले को गाली देता है, रिक्शे वाले पर्सन को फिर गाड़ी वाले गाली दे देते हैं, बाइक वाले गाड़ी वाले को दे रहे हैं, एक दूसरे से हम मार पिटाई करने लगते हैं। गाली गलौज तो इतना होता है सड़क पे, दिल्ली में तो खासतौर पे सबसे ज्यादा। अगर आप एक दूसरे के साथ डिग्निटी से पेश नहीं आ रहे हैं, रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आप मानेंगे कि सामने वाला आपका फेलो ब्रदर है या फेलो सिस्टर है और देयर इज अ फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड? नहीं मान पाओगे ना। तो वही बात हो रही है कि इफ यू एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो वहां से क्या आता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन आता है। फ्रेटर्निटी ये काम करती है, ठीक है। तो ये प्रीएम्बल का टेक्स्ट है। अब इस प्रीएम्बल में आप देखो, राइट्स नहीं है एज सच, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें एक तरह का प्रोक्लेमेशन है, एक डिक्लेरेशन है। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या है। सो थिंक अबाउट द प्रीएम्बल। देयर आर गोल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। देयर इज अ गोल ऑफ लिबर्टी, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। देयर इज अ गोल ऑफ इक्वालिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, and there is a goal of fraternity which is connected to the model of dignity and unity and integrity of the nation. core principles क्या है? sovereignty, socialism, secularism, democracy, republic, और ऊपर के भी principles आप इसमें जोड़ सकते हैं। Now fundamentally what is preamble? Preamble is used for interpreting the clause of the constitution. So think like this, suppose you have a book, right? Suppose कोई किताब हो, तो उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, उसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। इट्स लाइक एन ओपनिंग स्टेटमेंट।
let's say it's like a key to understand the mind of the framers, और it's like the preface of a book, ठीक है, उसका भूमिका जो होती है ना वो प्रियम्बल होता है। तो यहाँ प्रियम्बल में साफ दिया हुआ है, और जब जब कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब सीधी सी बात है कि आर्टिकल नंबर 14 का मीनिंग क्या है, क्या आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 से एक तरह से फंस गया है, किसी एक केस में कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस किया जाए। जब ऐसे मामले आते हैं ना, तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस क्या करते हैं, दे लुक अप टू द प्रियम्बल, दे थिंक कि प्रियम्बल में कैसे मर्ज किया है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ये है क्या, सी लाइक दिस, यू थिंक अबाउट जस्टिस, तो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल की बात हो रही है। सोशल जस्टिस क्या होगा कि सभी के साथ, है ना, सामाजिक स्तर पर एक जैसा व्यवहार हो, सभी को मौका मिले। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगा कि रिसोर्सेज में इक्वालिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो। पॉलिटिकल क्या हुआ, इक्वल राइट टू वोट, वन वैल्यू। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट लिबर्टी, तो लिबर्टी में क्या क्या दे दिया गया, थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। अब ये लिबर्टी सिर्फ आपको है या सबको मिली हुई है, दैट्स द क्वेश्चन। क्या ये लिबर्टी एक कम्युनिटी के पास है या सभी कम्युनिटी के पास है, क्या ये एक इंडिविजुअल के पास है या कम्युनिटी और इंडिविजुअल दोनों के पास है, या इंडिविजुअल एज पार्ट ऑफ कम्युनिटी उसके पास भी है। जैसे मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं भगवान को मानूंगा, तो ये लिबर्टी मुझे है, बिलीफ, राइट। या मैं सोचूं कि मैं इसी भगवान को मानूंगा, ये भी है। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा, ये भी है। नाउ आई कुड बी थिंकिंग इट एज एन इंडिविजुअल, तो क्या कम्युनिटी मेरे राइट्स को वायलेट करेगी? और आई कुड बी थिंकिंग एज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, तो क्या मैं किसी दूसरे इंडिविजुअल के राइट को वायलेट करूंगा? तो सोचिए, लिबर्टी जो अभी तक इंडिविजुअलिस्टिक नजर आ रहा था, जब हम सभी को एक ही लिबर्टी देने की बात करने लगते हैं, तो वहां इक्वालिटी आ गई कि नहीं आ गया, इक्वल ट्रीटमेंट। जो लिबर्टी मेरे पास है वही लिबर्टी आपके पास भी है, राइट। सो दिस इज हाउ प्रियम्बल इज बैलेंसिंग लिबर्टी विद इक्वालिटी, जस्टिस विद इक्वालिटी एंड लिबर्टी, राइट। इक्वालिटी विद स्टेटस प्लस अपॉर्चुनिटी, अगेन लिबर्टी कमिंग इन, सबको मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका इंडिविजुअल बेसिस पे मिलना चाहिए, राइट। सो जब प्रियम्बल ऐसे बैलेंस करता है, तो जब कभी भी देयर इज अ इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन इन्वॉल्व, तो वहां पे क्या होता है, अक्सर फ्रेमर्स के माइंड को जानने के लिए प्रियम्बल का सहारा लेते हैं। प्रियम्बल ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अमेंडमेंट प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर मैंने समझाया है पिछली क्लास में भी, इट रेफर्स टू दोज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट प्रोसेस। यानी कि जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट के पावर का इस्तेमाल करके संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है, कुछ नया चीज जोड़ने का प्रयास कर रही है, कुछ हटाने का प्रयास कर रही है, कुछ अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रही है, वैसा करते हुए दे कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, नहीं खत्म कर सकते। और प्रियम्बल में ऐसी बातें लिखी हुई हैं विच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल टोटली नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, बट प्रियम्बल में कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं which is known as part of the basic structure. For example, the ideal of democracy, rule of law, secularism, separation of power, judicial review, ये सब क्या है? These are fundamental values. Dignity of individual, ठीक है, balancing fundamental rights and DPSP, जैसे preamble में balance किया है, ठीक है, idea of economic justice, ठीक है, ये जितने आइडिया है ना, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, है ना, ये सारे के सारे जो आइडियाज हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो कई सारी चीजें इसमें से किसका है? दे आर पार्ट ऑफ प्रियम्बल एज वेल। जैसे डेमोक्रेसी प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है। तो दैट इज वाई मेनी थिंग्स रिटन इन द प्रियम्बल आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी आप राइट्स की बात करें, ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स जो प्रियम्बल में मौजूद हैं, एंश्योर्ड हैं, अ डिक्लेरेशन, अ काइंड ऑफ प्रोक्लेमेशन, वो क्या नजर आते हैं? हमें दिखता है कि वो ऑलरेडी ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। Preamble was adopted on 26th of November 1949 and as a proclamation of citizens' right, the first page of the Constitution guarantees certain human rights. अब ये preamble अपने आप में नहीं कर रहा, यही सारी चीजें फिर कहाँ जुड़ जाती हैं? They are becoming part of the so-called fundamental rights discourse, जहां से इन्हें एक enforceable character मिलता है. So let's move forward to that. Now, when we think about the fundamental rights, first let us go through the overview of fundamental rights. Number one fact is Article 12 to 35. They deal with the fundamental rights of the Indian Constitution. Article 12 is essentially not a right, but it tells you कि right आपको किसके against मिल रहा है. So Article 12 is about the state. ठीक है, ये है Article number 12.
So first try to understand what is Article 12. In Article 12, state is defined as like this: the government at the both levels, मतलब at the union level and at the state level. ठीक है, ये हो गया पहला, गवर्नमेंट. अब एक बात ध्यान रखना, सिंस यू आर स्टूडेंट ऑफ लीगल स्टडीज, जहां कहीं भी ये टर्म यूज हुआ हो, इफ इट इज मेंशन्ड एज दी गवर्नमेंट, ठीक है, अगर ये टर्म यूज हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव. हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं. सो वेदर इट इज द एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, or whether it is executive at the state level, chief minister, governor, right, council of ministers, state level and the state administration. Second is the parliament and the state legislatures. So here we are talking about the second wing of the government, which is legislature. Executive ho gaya, legislature. And then panchayats, municipalities, other organizations which function as a state, like for example Delhi Jal Board, Indian Oil Limited, और फॉर दैट मैटर सम काइंड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है ना, ये सारे इसके दायरे में आते हैं. जुडिशरी व्हेन इट इज परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, तो वो भी आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के दायरे में आती है. सो फर्स्ट इज आर्टिकल 12, यहां से शुरू हुआ, आर्टिकल 35 तक ये जाता है. सो दिस इज द फंडामेंटल राइट्स पार्ट. सेकेंड फैक्ट क्या याद रखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स? सिंपल, to protect the civil liberties and the freedoms of every citizen of India and to some freedoms of the persons who are in India. So ये पहला है, सिविल लिबर्टीज और फ्रीडम्स को बचाना है. थर्ड क्या है इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज एनफोर्सिएबल. एनफोर्सिएबल का मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, सपोज दैट योर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, सपोज आपको राइट्स एंजॉय नहीं करने दिए जा रहे, सो you can actually go to a court of law to get this enforced. मान लीजिए आपका कोई, मान लीजिए आपको बिना बताए, आप स्टार्टिंग में एग्जांपल दें ना, कि मान लीजिए आपको उठा के कोई लेगा घर में से, राइट, सो यू गो टू द कोर्ट, यू से कि आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है ना, सस्पेंड हो गया उसका सिविल फ्रीडम. तो इस तरीके से एनफोर्सिएबल है, वी कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ and get them legally enforced. Then we have Article 32, which is a very interesting article, also known as the heart and soul of the Indian Constitution. This is the legal remedy or right to constitutional remedies. For getting our rights enforced, we can actually have many kind of writ petitions in the court. ठीक है, तो ये वो चीज है. Then Article 13. Article 13 क्या करता है? हमारे fundamental rights को एक negative state action से बचाता है. It states like this, that all those laws which are in violation or contravention of the fundamental rights will be declared null and void to the extent of such violation. मतलब ये हुआ कि जितने ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो या उसके अगेंस्ट हो, तो जितने एक्सटेंट तक वो वायलेट करते हैं या जितने एक्सटेंट तक उसके अगेंस्ट हैं, उतने एक्सटेंट तक उस कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा. जैसे मान लीजिए अगर एक कानून है ए से लेके बी तक, बीच में एक पॉइंट है सी, अगर ए टू सी पार्ट अच्छा है, फंडामेंटल राइट्स को लेके रिस्पेक्टफुल पार्ट है, लेकिन सी से बी का पार्ट रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, और भी चीजें इसमें फर्दर लेयर्स हैं, अभी के लिए इतना जान लीजिए, सी टू बी वाले पार्ट को वो नल एंड वॉइड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल डिक्लेयर कर देगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट आर्टिकल 13 इज लाइक अ बेंचमार्क, इट्स लाइक द फंडामेंटल शील्ड. जब 13 भी काम नहीं कर रहा है, 13 का काम हो चुका है, उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ने कांड कर दिया है, तो आर्टिकल 32 आता है. ठीक है, ये समझना है आपको. देन क्या है, स्टेट वर्सेस प्राइवेट का आइडिया रखना है. मतलब क्या है, मेजरली राइट्स क्या होते हैं, आप अगर देखेंगे तो आपको ये बात शायद समझ में आ जाएगी आसानी से. राइट्स होता क्या है? इनिशियली पीपल थिंक कि राइट्स हमें मिलते हैं बिकॉज वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ क्लेम्स, राइट, बट कैसे मिलते हैं? Rights are actually claims against the state. For example, Article 14, equality before the law or equal protection of laws. इसमें क्या है? The state shall not deny any person equality before the law or equal protection of laws. Article 21, right to life and personal liberty. No person shall be deprived of, है ना, their right to life and personal liberty except procedure established by law. ठीक है? The state shall not discriminate. The state shall not do something like this. स्टेट को रोका जा रहा है कि स्टेट ये काम नहीं करेगा, स्टेट वायलेशन नहीं करेगा, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, स्टेट इस तरीके से किसी को राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से नहीं छीनेगा. तो क्या हुआ,
आपको राइट्स तभी मिल रहे हैं जब आप स्टेट को बांध रहे हैं, राइट? दैट इज वाई राइट्स आर क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट. सो मोस्ट ऑफ द राइट्स आर एक्चुअली अगेंस्ट द स्टेट. यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं रही अगेंस्ट वर्ड से. यू नीड टू अंडरस्टैंड द लीगल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? बट some rights are against private entities as well. So for example, if you in your capacity are employing a particular children below the age of 14 year in a hazardous circumstance, आप अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को पटाखा बनाने में एम्प्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, उससे मैन होल साफ करवा रहे हैं, तो आप भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं. अगर आप किसी के साथ शॉप में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पर्सन्स कास्ट, तो आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स और प्राइवेट एंटिटीज एज वेल. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, fundamental rights in a value sense are part of the basic structure. Many of the fundamental rights values are part of basic structure, and the balance between the fundamental rights and DPSP, that is Directive Principle of State Policy, is part of basic structure. Let's move forward. Let's look at fundamental rights एक brief तरीके से. First, क्या है fundamental rights? They encompass civil and political rights. Right to equality क्या है? यही सवाल आएगा. Article number 14 to 18. राइट टू फ्रीडम क्या है? आर्टिकल 19 टू 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28. कल्चरल एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30. एंड देन फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32. 33, 34, 35 मार्शल लॉ उस सबसे संबंधित है. एज सच आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन. Now right to equality. Let's understand this. What is right to equality? और हम समझ पाएंगे कि ये है क्या. देखिए पहला चीज क्या है. When you think about the ideal of equality, as I said, equality is connected to the idea of proportionality. ठीक है, हम proportionality की बात कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? जो सिमिलर लोग हैं उन्हें सिमिलरली ट्रीट कीजिए, और जो अनइक्वल हैं उन्हें डिफरेंटली ट्रीट कीजिए. अब इसको ना एंशिएंट थिंकिंग से मत सोचना. एरिस्टोटल भी कुछ ऐसी बातें करता था, ठीक है, मनु भी कुछ ऐसी बातें करते थे. जैसे ब्राह्मण्स आर सिमिलर तो अलग ट्रीटमेंट होगा, ब्राह्मण्स एंड शूद्रास आर नॉट सिमिलर तो अलग ट्रीटमेंट होगा. ये मनु का एक थिंकिंग था, राइट? अ वेरी कास्टिस्ट थिंकिंग. एरिस्टोटल, फ्री पीपल मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली. Free and slaves, when we compare these two, they must be treated very differently, right? तो free people different treatment क्या है? उनके बीच में same treatment होगा. Free people और slave के बीच में unequal treatment होगा. That is the pre-modern idea of treatment. Modern idea is no. There is no thing such as slavery. There is nothing like this called caste discrimination. No. Whether it is a person who was once a slave, उसके generations अब free हैं. That person is a human. It doesn't matter to which caste you belong. It doesn't matter which color complexion you have. It doesn't matter which gender category you belong to. You are a human being. और आपके साथ treatment equal होना चाहिए. But there are certain people who are disadvantaged. There are certain people who are not equal in economic sense. There are certain people who have faced historical discrimination. When we think about these people, they must be treated with some extra care. That is the idea of unequals differently. Now what is Article 14? It is equality before the law or equal protection of the laws. इसका मीनिंग क्या है? कानून के सामने सब बराबर हैं और हर कानून का हर किसी के ऊपर एक तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए. So equal treatment under the law. Then we have Article number 15. Article number 15 is prohibition of discrimination. Fundamentally क्या है? There shall be no discrimination based on. इंडिया आजादी हुआ था, पार्टीशन झेला था, तो सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के, दैट वाज रिलीजन. सो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस आर की पावर 2, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, आर की पावर 2 CSPB. सो रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. बट इसमें क्या क्या है थोड़ा और जानकारी ले लीजिए, बिकॉज सीयूटी क्या करेगा, आपसे यही पूछ लेगा. यहां पे एक सवाल बनेगा, आर्टिकल 15 क्या, आर्टिकल 14 क्या है.
So it prevents both the state and private individuals from restricting access to public spaces. रेस्टोरेंट है, पब्लिक बाथ है ना, होटल है, फैसिलिटीज है, वेल है, टैंक्स है, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जितने पब्लिक कम्युनिटीज हैं, सोशल स्पेसेस है, वहां पे सबका इक्वल एक्सेस होना चाहिए। तो कभी आप देखते हैं ना कि गवर्नमेंट का मान लीजिए कोई इवेंट है, सब इक्वली जा सकते हैं, गवर्नमेंट टॉयलेट्स हैं, सब इक्वली जा सकते हैं, वरना कास्टिस्ट पर्सन तो बिल्कुल ये अलाउ नहीं करता। Then we have article number 16, which is equality in public employment. Here we have specific idea of reservation, unequals differently, है ना। अब कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं रिजर्वेशन खराब चीज है वगैरह वगैरह, तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि रिजर्वेशन को समझते हुए ना केवल इतना समझ लो कि आपका दिमाग थोड़ा सा क्लीन हो जाए इस मामले में कि ये है क्या। सी, मान लीजिए आपने रेस तो देखा ही होगा, जैसे मान लो हम एक रेस का ये बनाए, है ना, 2 3 4, एक और बना लेता हूँ, ठीक है, 5। सो जब ऐसी दौड़ होती है तो दिस इज द फिनिशिंग लाइन, राइट, ये फिनिशिंग लाइन है। लेकिन आपने देखा होगा स्टार्टिंग लाइन ऐसी होती है, सबसे अंदर वाले जो गोला में इंसान होता है वो सबसे पीछे खड़ा होता है, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा। तो ये एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा उसको बेनिफिट, उसकी दौड़ लंबी पड़ेगी अगर वो पीछे से दौड़ेगा तो। इसी तरह समाज में बहुत सारे लोग हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज हैं, वो सबसे बाहर वाले उसमें हैं, तो उनको बराबर से आप कैसे दौड़ा सकते हो, उन्हें बराबर करने के लिए आप आगे भेजते हैं, राइट। सो दैट इज द रिजर्वेशन। सो इसमें भी क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, एंड देन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी से थोड़ा सा रिजर्वेशन यहाँ मिलता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओबीसीज को भी मिलता है, विमेन के लिए भी पोजीशंस आती हैं, तो ये अलग अलग तरीके, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी है, तो ये हमें दिखता है। बट फंडामेंटली आर्टिकल नंबर 16 में आपको एससीज, एसटीज एंड लेटर ऑन ओबीसीज का एडिशन यहाँ पे नजर आएगा। देन वी हैव द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हिच इज आर्टिकल नंबर 17। नाउ हियर ऑलवेज रिमेंबर, in the Indian constitution untouchability is mentioned in double inverted comma, so we are referring to very specific kind of untouchability practice। इसमें क्या है, चाहे वो स्टेट हो या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, अगर वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है, छुआछूत प्रैक्टिस कर रहा है, तो स्टेट उसको रोक देगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, यहीं से निकला है। देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स प्लस लीगल फ्रेमवर्क्स। सो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो है, उससे पहले उसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। ये भी आर्टिकल 17 से आ रहा है कि अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा। एंड देन वी हैव द आइडिया ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। मतलब क्या है कि अगर कोई उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है, एनी नॉन एससी और नॉन एसटी पर्सन commit certain crimes, जैसे आप लोग सुनते होंगे ना कि किसी को जबरदस्ती they are making them eat some kind of excreta or dumping a dead carcass on a place where they live, इस तरह का क्राइम कर रहा है, दैट इज एट्रोसिटी। एट्रोसिटी हैज अ मास्टर स्लेव थिंकिंग। सो ये हमें नजर आता है, इस तरीके से कई केसेस रहे हैं जहां पे एट्रोसिटी हुई भी है, चाहे वो भंवरी देवी हो, उनके साथ भी हुआ, या आए दिन आपको दिखता होगा एससी एसटी एट्रोसिटीज तो रेगुलर केसेस हैं। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो पे जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल एक फोटो में आपको दिखाता हूँ, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सी, ये आदमी पानी पिला रहा है लेकिन ना दूर से फेंक रहा है ना, एंड देन सी व्हाट महात्मा गांधी सेड, our struggle does not end so long as there is a single human being considered untouchable on account of his birth। मान लीजिए यही सवाल आ गया तो आंसर क्या है, महात्मा गांधी। सो दिस इज अनदर आइडिया। सो राइट टू इक्वालिटी मैं चाह रहा था कि आप लोग आज समझ के जाएं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा कमाल का डॉक्यूमेंट है। अक्सर क्या होता है, जो पनिशमेंट की बात होगी, ये सारी चीजें ना, इट इज नोन एज पार्ट ऑफ द पिनल कोड। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को मार दिया तो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लेजेंडरी डॉक्यूमेंट। आर्टिकल 17, ठीक है, ये देख लीजिए, आर्टिकल 17, देन आर्टिकल 23 एंड 24, इसमें एक टर्म यूज हुआ है, देर आर सर्टेन एक्ट्स विच आर कंसिडर्ड एज अ क्राइम एंड दीज आर नॉट ऑर्डिनरी क्राइम्स, जैसे पिनल कोड वाला हुआ, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम्स। ठीक है, अगर आप इस तरह की कोई चीज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। सो दीज आर्टिकल्स आर एक्चुअली टेलिंग अस द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइम्स। सो आई विल स्टॉप this lecture here because we are running short of time. In tomorrow class I will start discussing from the idea of freedom। article 19 से हम लोग शुरू करेंगे because 18 आपको बहुत ज़्यादा इसमें connected नहीं है, evolution of titles है, and then we will move on to the discourse of the entire rights in Indian constitution plus DP, SP and fundamental
ड्यूटीज. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.